मैं उन्होंने जिंदगी पहली बार मिलिया थोड़े दिन पहलों जी। उन्होंने चेहरे ते एक अजीब किस्म का नूर है। ज़्यादा बोलूँगा तो किसी कईयों को बुरा लग जाएगा। कईयों का तो ऐसा है कि सरकार से फ्री में ज़मीन लेने तक ही सीमित हैं, वो लोगों का कोई भला नहीं करते हैं। अजकल तुसी देखो ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਰਾਹਾ ਦਾ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਊ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਰਮੈਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका SC न्यूज़ चैनल हिमाचल में। और आज से आप यहाँ पे आए हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जैसे आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कैसा लग रहा है आपको इस आश्रम में आकर? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आके सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपस में सारे लोग आपसी भाईचारा, बिना कोई ऊंच नीच के इस आश्रम के अंदर आके सारे संत रामपाल के शिष्य बन के सेवा करते हैं। ना कि कोई अपनी ईगो को लेके कोई ये नहीं बोलता कि मैं प्रिंसिपल हूँ, कोई ये नहीं बोलता कि मैं बैंक में मैनेजर हूँ, कि मैं किसी इंडस्ट्री का मालिक हूँ। जहाँ पे आके सभी कोई लंगर में सेवा करता है, कोई बर्तनों की सेवा, कोई जूतों की सेवा, कोई सिक्योरिटी की, सारे एक समान जहाँ पे सेवा करते हैं। सबसे खुशी की बात यही है। सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वर्तमान समय में जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? मैं इसीलिए संत जी के पास गया था उचेचे तौर पर उनका धन्यवाद करने कि पिछले समय जो पंजाब में हड़्ह आए थे उस समय पंजाब की सरकार, बड़े दुख की बात है, उन्होंने किसी किसान को 1 रुपया भी किसी किस्म की सहायता नहीं दी। जो उस समय बड़े बड़े बयान देते थे कि हम बकरी मरी का, हम मुर्गे मरे का भी पैसा देंगे, किसी ने किसी किसान को रुपया नहीं दिया। मगर संत रामपाल जी ने वहाँ से हरियाणा से आके हमारे अजनाला में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों किसानों की बाजू पकड़ी और उनकी सहायता की। उसी सहायता के लिए मैं पंजाब की ओर से उनका धन्यवाद करके आया हूँ। और सर एक बात और, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
वो भी बड़ी बढ़िया बात है जी। जो विडो लेडीज़ हैं और गरीब लोग हैं, विडो लेडी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे अपने ब्लॉक में भी कई परिवार हैं जिनको अन्नपूर्णा के तहत जो राशन की और उनके बच्चों को किताबें और ड्रेस वर्दियाँ फ्री में आश्रम के द्वारा मिलती हैं। वो बहुत एक किस्म का जो गरीब लोग हैं और जो खास करके विधवाएं हमारी बहनें हैं, उनको बहुत बड़ा सहारा है, वो ज़रूर चलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आज नशे की चपेट में आ चुका है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों को देखकर और उनसे बात करके ऐसा लगता है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं धरातल पर काम कर रही हैं। तो क्या समाज के सुधार के लिए समय को ध्यान में रखते हुए समाज को संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो सके? कोई इसमें किसी किस्म की हानि की बात नहीं है और किसी किस्म की इसमें अपनी प्रेस्टीज इशू को साइड पे छोड़ के जो कोई अच्छी बात करता है तो उससे सीख ले लेनी चाहिए। मैं तो सभी और जो डेरे हैं, सैकड़ों डेरे हैं पंजाब में, हरियाणा में और हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको भी यही बेनती कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप में किसी किस्म की कोई कमी है, कोई रामपाल जी से सीख ले लें, उसमें कोई कम तो होता नहीं है। वो जो नशे की जो बात है, जो और बात है, अगर सारे, क्योंकि नशा कोई सरकार नहीं बंद कर सकती, कोई और नहीं, सभी को इकट्ठे होकर हमला मारने की ज़रूरत होती है। सारे जो धार्मिक अदारे हैं, सरकारें हैं, उनको संत रामपाल जी के शिष्यों से, उनकी प्रेरणाओं से सीख लेनी चाहिए, तभी पंजाब नशा मुक्त हो सकता है। सर, जैसे कि आज आप इस आश्रम में आए हुए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आप जैसी शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिला है। तो यहाँ जो लोग आपको देख रहे हैं और जो आगे जो दर्शक आपको देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम तो कलयुगी जीव हैं जी, हम क्या किसी को संदेश दे सकते हैं। हम तो यही बोलते हैं कि सभी धर्मों ने, सभी गुरुओं ने एक ही बात सिखाई है कि रल मिल के रहो, किरत करो, नाम जपो, बंट छको, गरीबों का भला करो। उसी जो हमारे 10 गुरुओं का संदेश है, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक देव का, मेरे हिसाब से गुरु संत रामपाल जी का भी यही संदेश है कि सब भाई बहन आपस में रल मिल के रहो, अपनी जो किरत कमाई है उसमें से दसबंध निकालो और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करो। यही सबसे बड़ा धर्म है, उससे सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ VIP ਕਲਚਰ ਵੱਧ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, VIP ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो किसी कईयों को बुरा लग जाएगा। कईयों का तो ऐसा है कि सरकार से फ्री में ज़मीन लेने तक ही सीमित हैं, वो लोगों का कोई भला नहीं करते हैं। 500 एकड़, 200 एकड़, 2 रुपये, 5 रुपये गज के हिसाब से सरकार से ज़मीन ले रखी है और उस पर अपने पर्सनल ट्रस्ट चल रहे हैं। लोगों का कोई किसी किस्म का भला नहीं हो रहा है। उनके भी चरणों में ही हम तो बेनती करते हैं कि वो कुछ संत रामपाल जी से और जो अच्छे काम करते हैं उनसे सीख लेके कोई दुनिया का भला करे। चले, सबने जाना है एक दिन। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।